In the previous session video, we have already gone through what is SQL and what is DDL, DML, and DCL, right? So in the today's session, we will start with DDL. So yesterday we have seen what is the meaning of DDL. Still, I'm taking this again. So DDL stands for Data Definition Language. DDL defines set of command used in the creation and modification of the schema, such as table, indexes, and view. So basically, in DDL command, we can use like create, alter, drop, and truncate command, right? We have already mentioned here. And with the help of this, we can like define the schema or alter the schema or drop the schema. So basic syntax of table is like create table, then table name into bracket your number of columns. We will see this in action, and this all set, right? So there are some guidelines to define the table. So guidelines are like there are some rules which we should follow. Table name should start with an alphabet. Means table name always start with alphabet. Table name blank spaces and single quotes are not allowed. Means we should not use single quote, blank spaces, or double quote into the table name. Then reserved words of the DBMS cannot be used as a table name, right? So reserved words means what? Yesterday we have seen like declare word, right? Set, then if Set, else. if, So these if, are the reserved words from the database, means SQL server. So we should not use this as a table name, right? Proper hmm, data type and size should be specified. Means every column has like data type like integer, string, varchar. In SQL we call it varchar. Then float, then double. So these are the data types available in the SQL server. So we should use a proper data type for proper column, and size should be specified. प्रॉपरचं परत एकदा सांगा ते आवाज कट झाला मध्ये प्रॉपर Okay, डेटा so साईज we should use proper data types for columns. Okay, and size should be specified. Size means for some data type we provide size. Okay. Then next is like unique column name should be specified. So column name always unique into the table. Okay. ओके So there are some constraint which we uh, use while defining the table. So before this, let's see how to define a table. So let's come to the SQL server. Okay. So um, okay. So yesterday only we have seen how we can perform queries on the database, right? So I am going to work on this database, DemoDB, right? Okay. So I have selected this from the drop down, and now I can write queries here. So syntax of table is like create table, table name I will say like emp demo 10. Okay. Then what was next, like column name and their data types, right, with constraint. So column name like id, then data type is like integer, then column name data type is varchar 50. Okay. Then gender varchar 50. So here varchar is used to define the string data type into the SQL server, and this size is defines means how many characters we can put into that column. So 50 means we can have a 50 character into that column, and then 100 means we can have 100 columns. Okay. So when we create a table, it will reflect in your database. So our database is DemoDB. Yes, this is what we have selected here. So this query will execute on this database only. Okay. So here is the database. We can see that. So the table, once it is created, it will be reflected into this table list. Okay. So I am creating this table. So create table, table name. So execute the command. So command is executed. If there are error, it will not execute, right? But here is the message showing command completed successfully. It is mean that yes, the query is successful. But when we try to find it here, right?
see if we can see employee demo 10, it will be not visible immediately, right? Because it is just created, so it was not visible. But if it is not visible, you have to just refresh it. Okay, it is showing right now, but if it is not visible, you have to just right click and refresh here. यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे रिफ्रेश करना है, एक बार वेरिएबल डिक्लेयर किया तो ठीक है. सॉरी, टेबल क्रिएट करने के बाद यू हैव टू जस्ट रिफ्रेश हियर दिस वे. तो यहाँ पे आपने रिफ्रेश किया तो यू विल गेट यूर टेबल. ठीक है. तो यहाँ पे ये फिल्टर लगाया था मैंने, यहाँ पे ये फिल्टर को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे सब टेबल रिफ्लेक्ट होंगे. तो अपना टेबल का नाम क्या था, EMP डेमो 10. तो यहाँ पे इस तरह से ये टेबल रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट? सो दिस इज द वन वे वी कैन क्रिएट अ टेबल, राइट? The other way we can use a designing feature provided by SQL Server. So if we have to create any table into the any specific database, तो उस database के अंदर जाके वो टेबल को राइट क्लिक करके न्यू टेबल करो आप. ठीक है. तो यहाँ पे न्यू टेबल किया, यहाँ पे आप इस तरह से कॉलम नेम, देन यहाँ पे डेटा टाइप. तो आपका क्वेश्चन होगा कि आपको डेटा टाइप कहाँ पे पता चलेंगे, तो ये यहाँ पे आप सब डेटा टाइप देख सकते हो, राइट? तो यहाँ पे सब डेटा टाइप दिए हुए हैं उन्होंने. हाँ, इस तरह से टाइप किया तो आ जाता है. तो मतलब ये UI फीचर यूज करके भी आप टेबल बना सकते हो. ठीक है ना? सो दीज आर द टू वेज वी कैन क्रिएट टेबल, राइट? तो ये टेबल मतलब इस तरह से डिफाइन करने के बाद कंट्रोल एस करना है आपको. कंट्रोल एस करने के बाद इट विल आस्क यू फॉर टेबल नेम. सो UI EMP डेमो. ठीक है. तो इस तरह से आप UI से भी टेबल क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. टेबल क्रिएट हो गया. लेट्स फाइंड इट दिस हियर, UI EMP डेमो. यस. तो यहाँ पे इस तरह से टेबल क्रिएट हो जाएंगे, राइट? अभी फॉर टेम्पररी आप यहाँ पे राइट क्लिक करके टेबल को राइट क्लिक करना है आपको, राइट? जो भी टेबल आपने बनाया और उसको एडिट पे हिट करना है. तो इस तरह से आप यहाँ पे डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, नेम गणेश. ठीक है. एंड जेंडर मेल, राइट? उसके बाद 2 नदीम, जेंडर मेल, राइट? ठीक है. यहाँ पे डेटा डालने के बाद ये क्वेरी को इस तरह से क्लोज कर दो आप. यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड मैं अपना टेबल का नाम डालूंगा, तो अभी यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेरी एग्जीक्यूट करना है आपको. ठीक है. ठीक है. ये रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे इस तरह से. हाँ, ओके. ठीक है. और ये सब गाइडलाइन आपको फॉलो करने, मतलब वाइल डिफाइनिंग द टेबल नेम. ओके. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो दैट इज कंस्ट्रेंट. हम लोग ये मतलब अभी देखेंगे इसी सेशन में. बट बिफोर दिस लेट्स फिनिश द सम लाइक ऑल्टर एंड ड्रॉप कमांड. ठीक है. तो क्रिएट कमांड आपको अंडरस्टैंड हो गया, राइट? सिंपली वी कैन दिस वे क्रिएट टेबल्स इनटू द डेटाबेस, राइट? उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड था, दैट इज ऑल्टर टेबल कमांड. सो this is the second command from the DDL statement. It is for modification for existing structure of the table in the following situation. मतलब अल्टर कमांड कब यूज होता है, जब आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करना है एग्जिस्टिंग स्कीमा में. मतलब टेबल डिफाइन हो गया फॉर एग्जांपल, एंड नाउ you have a requirement like adding one more column into the table. So in that case you can go with DML command, that is alter table. So these are the situation like add new column or change existing column definition, include or drop integrity constraint. तो constraint क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे. So and enable or disable the constraint. So in this case we can use alter command. तो यहाँ पे 3-4 syntax है basically, but we will see only some syntax from this. Okay. तो यहाँ पे फर्स्ट सिंटैक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम एंड डेटा टाइप. उसका सेकंड सिंटैक्स ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम, कॉलम नेम, डेटा टाइप. तो ये जो फर्स्ट सिंटैक्स है, इट इज यूज्ड टू ऐड द कॉलम, एंड द सेकंड सिंटैक्स इज यूज्ड टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम. ओके. उसके बाद ये वाला ये कंस्टेंट के लिए है, बट वी आर नॉट गोइंग सच अ डीपर राइट नाउ इनटू दैट. ओके. वी विल सी दिस इनटू द लाइक इन आवर कमिंग सेशंस. उसका जो नेक्स्ट है वो है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम. ओके. अगर कोई कॉलम अगर ड्रॉप करना है तो वी कैन यूज दिस सिंटैक्स. देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंस्ट्रेंट एनेबल डिसेबल करने के लिए. बट लेट्स सी सम ऑफ देम. ओके. सो लेट्स सी दिस सिंटैक्स.
ओके अभी आप फॉर एग्जांपल अभी अपना जो टेबल है वो टेबल का नाम है एम्प्लॉय डेमो। जो फर्स्ट सिंटैक्स मैंने यहाँ पे टाइप किया है दैट इज ऑल्टर टेबल टेबल नेम देन ऐड डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज डेट मतलब एक कॉलम मुझे ऐड करना है। right now I can see that there are only like 3 columns into the this table, right? Employee demo, id, name and gender. So अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, I am adding a third column that is date of joining and it has a date data type, right? So I am adding this into the our table. ठीक है, तो मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूँ इस कमांड को। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैसेज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। लेट्स सी इफ द कॉलम इज एडेड। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया, राइट? और वो नल है बिकॉज अभी अभी वो कॉलम ऐड हुआ है, देयर इज नो डेटा इनटू दैट कॉलम, राइट? ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो एक varchar एड्रेस ऐड किया हुआ है, राइट? तो यहाँ से आप इस तरह से एड्रेस ऐड कर सकते हो। सो दिस वे वी कैन ऐड कॉलम्स इनटू द टेबल। सॉरी एक्चुअली द टेबल नेम वाज डिफरेंट, लेट मी डू दिस अगेन। ठीक है, ये ऐड हो गया अभी अपने टीच में। ओके सॉरी, ये एड्रेस कॉलम ऐड हुआ, राइट? उसके बाद जो नेक्स्ट हमने सिंटैक्स देखा था वो था हाउ वी कैन ऑल्टर द डेटा टाइप, राइट? ऑल्टर द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पे अभी एक जो कॉलम ऐड हुआ है एड्रेस यस, ये एड्रेस कॉलम ऐड हुआ है, इसका जो डेटा टाइप है वो varchar 50 है, राइट? तो अगर आप यहाँ पे भी जाके देखोगे, राइट क्लिक करो आप इसको, टेबल को, ये वाला टेबल में हमने मॉडिफाई किया था, तो इसको राइट क्लिक करके आप डिजाइन मोड में इसको ओपन करना है आपको, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस कॉलम इज एडेड एंड हैविंग डेटा टाइप varchar 50, राइट? नाउ अभी मुझे क्या करना है, उसको डेटा टाइप चेंज करना है। हाँ तो हाउ आई कैन डू दैट, आई विल शो यू द सिंटैक्स। हमने जो नेक्स्ट सिंटैक्स देखा था वो क्या था, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम, देन कॉलम नेम एंड चेंज द डेटा टाइप। अभी डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको varchar 50 का 100 कर देता हूँ, राइट? मतलब मैंने इसका साइज का डेटा टाइप का साइज है ना, मैंने बढ़ा दिया। आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो और इसको n varchar कर देता हूँ। n varchar एक डेटा टाइप है अपने पास, ठीक है? n varchar मैंने 100 कर दिया। अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो कमांड यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको एक बार रिफ्रेश करो, देन अगेन राइट क्लिक एंड ओपन इनटू द डिजाइन मोड। तो यहाँ पे अभी उसका जो डेटा टाइप है वो चेंज हो गया, राइट? तो ऑल्टर टेबल से आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज द डेटा टाइप, राइट? उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉप कॉलम कमांड। ओके, फॉर एग्जांपल अभी मुझे एक कॉलम ड्रॉप करना है टेबल से। अभी जो मैंने एड्रेस या डेट ऑफ ज्वाइनिंग किया था उसको मैं ड्रॉप कर दूंगा बस फॉर आवर डेमोन्स्ट्रेशन अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है? DOJ। So the syntax of drop column is like alter table name, put our table name here, then drop column name. So column name is date of joining, right? Date of joining. Yes. तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर कुछ गलत है, कॉलम नेम गलत है या फिर टेबल नेम गलत है, इट विल थ्रोज एन एरर, राइट? इफ देयर इज एनी सिंटैक्स इशू इट विल थ्रोज एन एरर। ठीक है, तो मैं इसको फिर से चेक करता हूँ। तो द कॉलम इज डिलीटेड फ्रॉम द टेबल, राइट? ठीक है। उसके बाद जो लास्ट सिंटैक्स है दैट इज ड्रॉप टेबल नेम। तो इट इज वेरी सिंपल सिंटैक्स, ड्रॉप टेबल नेम एंड इट विल ड्रॉप द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। तो अगर इसको मैं अभी ड्रॉप कर दूंगा तो इट विल ड्रॉप फ्रॉम द डेटाबेस। आप बोलोगे यहाँ पे दिख रहा है, बट राइट क्लिक किया तो नहीं दिखेगा, है एग्जिस्ट, ठीक है? नो लॉन्गर एग्जिस्ट, राइट? और अगर इसने आपको इस तरह से रिफ्रेश भी किया तो इट विल बी मींस डिलीटेड फ्रॉम द आवर लिस्ट। ओके, तो इस तरह से आप ड्रॉप कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है आपको? ओके, सो अभी हमने क्या क्या देखा DDL कमांड में, क्रिएट टेबल, देन ऑल्टर टेबल एंड देन ड्रॉप टेबल, Alter table, drop राइट? table. अब इसमें और एक कमांड है ट्रंकेट, बट वो हम लोग आगे के सेशंस में देखेंगे, ठीक है?
तो बट यहाँ पे बस एक से मतलब पॉइंट बाकी था विच कम्स इनटू द आवर क्रिएट टेबल कमांड, राइट। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है दैट इज कंस्ट्रेंट। तो ये कंस्ट्रेंट क्या है वो हम लोग आज देखेंगे। So basically constraint is nothing but what putting some rules on the database columns। मतलब जब हम कुछ कॉलम डिफाइन करते हैं तो we can put some rules on that। So rules means what? For example यहाँ पे एक first constraint है that is not null। Using this constraint we can restrict null into the particular column। मतलब for example एक कॉलम है जैसे first name कॉलम है, right। और आपको वहां पे एक रूल अप्लाई करना है कि जैसे फर्स्ट नेम कॉलम नल नहीं होना चाहिए, मतलब अगर यूजर ने ऑलवेज वैल्यूज में इंसर्ट करनी ही चाहिए, तो दीज आर द रूल्स वी कैन अप्लाई। so we can use null constraint। okay, so you understood what is constraint। so let's start with like null constraint। using this constraint we can restrict null into the particular column। okay, then second point क्या है? unique constraint। it is used to define column as a unique। मतलब कोई कॉलम में अगर आपको यूनिक वैल्यू चाहिए, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, तो यू कैन यूज यूनिक कंस्ट्रेंट। इट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यू। ओके, इट कैन बी नल। मतलब यहाँ पे आप एक नल डाल सकते हो ना यूनिक वैल्यू में। वी कैन हैव अ मल्टीपल यूनिक कॉलम्स इनटू द सिंगल टेबल। मतलब एक टेबल में आपके पास मल्टीपल आप यूनिक कीज डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज प्राइमरी की। okay, so this is also one of the key। so once column defined as primary key it does not allow duplicate values in the table। मतलब आपने एक बार कॉलम प्राइमरी की डिफाइन किया तो इट विल नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यू। इट कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। तो ये नल भी एक्सेप्ट नहीं करता है प्राइमरी की। we can have only one primary key in the single table in the SQL server। it can be used as a reference key in the other table। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी की है इट कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस की, एज अ फॉरेन की इनटू द अदर टेबल। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज चेक। it is used to give the condition to the column while entering data into the table। मतलब आप क्या कर सकते हो when you when we have to enter something into the x column or first column and we have to like put some conditions। so we can do that using check constant। तो आप इसमें check constant करके अप्लाई कर सकते हो। उसका नेक्स्ट डिफॉल्ट। इट इज यूज्ड टू सेट डिफॉल्ट वैल्यू टू पर्टिकुलर कॉलम। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कॉलम है, आपको अगर उसमें वैल्यू अगर आपने नहीं डाली तो इट शुड टेक सम डिफॉल्ट वैल्यू। इन दैट केस वी कैन यूज डिफॉल्ट कंस्टेंट। ठीक है, और जो लास्ट है दैट इज रेफरेंसेस। सो इट इज यूज टू लाइक वी कैन यूज वन टेबल प्राइमरी की एज अ फॉरेन की और रेफरेंस की इन द अदर टेबल। इट कैन बी नल, इट मस्ट बी प्राइमरी की इन द अदर टेबल। ठीक है, मतलब एक टेबल की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की हम लोग दूसरे टेबल में यूज कर सकते हैं। वो नल हो सकती है। इट कैन बी इट कैन एक्सेप्ट नंबर ऑफ नल, देयर इज नो लिमिट। एंड it must be a primary key on the other table। but वो अगर आपको एज अ फॉरेन की यूज करना है तो यू मस्ट डिफाइन दिस एज अ प्राइमरी की इन द अदर टेबल। ठीक है, ये सब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फॉर योर डेमोन्स्ट्रेशन, और मैं वो भी यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी इन द प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्वेरी बनाई हुई है मैंने दैट इज क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है प्रोडक्ट 1, राइट। उसका यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है PNO इंटेजर, और ये डिफाइन किया है एज अ प्राइमरी की, राइट। और इसका आइडेंटिटी 1,1 ये मतलब ये एक फंक्शन है एक्चुअली। तो ये मैं हटा देता हूँ। हाँ, 1, एक फंक्शन। वो आइडेंटिटी हटा दिया मैंने। ठीक है, आप उसको भूल जाओ। तो यहाँ पे मेरा अपना सिंटेक्स का क्रिएट टेबल प्रोडक्ट 10। ठीक है, PNO इंटेजर प्राइमरी की। ओके, ये वो अपना फर्स्ट ये वाला कांस्टेंट कौन सा, प्राइमरी की कांस्टेंट, राइट। तो इस तरह से आपको टेबल में डिफाइन करना है डेटा टाइप के बाद प्राइमरी की। ठीक है, उसके बाद पी नेम मैंने क्या किया, वर्कर है, और नॉट नल कांस्टेंट यूज किया। नॉट नल मतलब इट विल नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू, राइट। नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। हाँ, मैं इसको हटा देता हूँ, नॉट नल को हटा देता हूँ, सिर्फ यूनिक रखता हूँ यहाँ पे। हाँ, ठीक है, यहाँ पे यूनिक कर दिया। उसके बाद में कोटेशन नंबर इंटीजर है, डिफॉल्ट मैंने इसको 100 कर दिया। हाँ, डिफॉल्ट कांस्टेंट जो हमने यहाँ पे पढ़ा। हाँ, जो डिफॉल्ट वैल्यू हाँ, होता इट है। विल एक्सेप्ट डिफॉल्ट वैल्यू। हाँ, डिफॉल्ट 100 मतलब क्या, अगर आपने वैल्यू नहीं डाली तो इट विल टेक डिफॉल्ट 100। तो अपने आप हाँ, आता है वहाँ पे राइट। डिफॉल्ट। अब जो क्लास है, क्लास कैर1 यहाँ पे, मतलब ये डेटा टाइप है उसका कैरेक्टर, और इसको मैंने नॉट नल कर दिया, मतलब इट विल नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू, बराबर है। हाँ, उसके बाद में रेट है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यूमेरिक 10,2। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब ये मतलब फ्लोटिंग वैल्यू लेगा।
ठीक है, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स। बट 10,2 का मतलब क्या होता है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फाइनाइट नंबर और 2 डॉट वो इनफाइनाइट नंबर, इस तरह से वो लेंगे, ठीक है, 10,2 का मतलब। उसके बाद में फाइनली क्या किया मैंने यहाँ पे ये हो गया अपने कॉलम्स टेबल के, राइट। यहाँ पे लास्ट में मैंने एक चेक कंस्टेंट अप्लाई किया हुआ है, तो इसका क्या है, चेक कंस्टेंट का मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ। तो इस तरह से मतलब चेक और राउंड ब्रैकेट में आपको क्या करना है, कंडीशंस डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट जो राउंड ब्रैकेट है यहाँ तक है वो, हाँ। तो इसमें क्या लिखा है, क्लास, क्लास मतलब ये कॉलम, अगर इसमें अगर वैल्यू आपने ए डाला, ठीक है, तो रेट के कॉलम में आप लेस देन 1000 ही आप वैल्यू डाल सकते हो, इस तरह से ये कंडीशन है। और अगर क्लास बी अगर डाला, मतलब अगर क्लास के कॉलम में अगर आपने बी कैरेक्टर डाला, तो यू मीन इट इज मीन दैट यू कैन एंटर वैल्यू into the rate column greater than 1000 and less than 4500. So this is how we can apply check constant, ठीक है। तो ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। इसको मैं क्रिएट करता हूँ ये टेबल को, तो मैंने वो स्पेसिफिक क्वेरी सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो टेबल है उसका नाम क्या है, प्रोडक्ट 10 है, राइट। प्रोडक्ट 10 यस, लेट्स फाइंड दिस टेबल हियर, प्रोडक्ट 10, ये वाला है। तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और डिजाइन मोड में ओपन करता हूँ, डिजाइन नहीं सॉरी एडिट मोड में करना है, एडिट मोड में, ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट 1 by 1 कंस्टेंट चेक करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम पे क्या था, प्राइमरी की था, राइट। तो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, इट विल नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यू। तो मैं यहाँ पे कुछ तो डाल देता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे मैंने 1 डाला, अभी यहाँ पे मैं 2 डाल के देखता हूँ वेदर इट विल एक्सेप्ट और नॉट। यहाँ पे क्या आया, रुको ये तो दूसरे एरर है, इसको ना अपन ये हटा देते हैं, BB 22 A 999। यहाँ पे मैं अभी फिर से 1 डालता हूँ, यहाँ पे 2 डाला तो उसने ले लिया, राइट। अभी फिर से 1 डालता हूँ, तो यहाँ पे क्या आया देखो, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की, बराबर है, मतलब इट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट है ना कीज इनटू द प्रोडक्ट 10, बराबर है। प्रोडक्ट 10 मतलब वो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकता, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा देखते हैं नल लेता है क्या, इट 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 डज नॉट अलाउ नल आल्सो, बराबर है, वो नल भी नहीं ले रहा है, राइट, ठीक है। तो प्राइमरी की कंस्टेंट समझ में आ गया सबके। ओके हाँ, तो यहाँ पे प्राइमरी की था। अभी पी नेम पे क्या यूनिक की है कंस्टेंट, है ना। मतलब यूनिक की का मतलब क्या है, इट विल एक्सेप्ट नल वैल्यू, बराबर है। मैंने यहाँ पे एक नल डाल दिया, बराबर है, तो इट इज टेकिंग दिस, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, बराबर बराबर है। बट अगर मैं डुप्लीकेट की डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भी ए डाला, ए डाला था, यहाँ पे भी ए डालता हूँ, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट इट, क्या है, वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्टेंट, बराबर है। तो इट इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। तो ये समझ में आ गया यूनिक की। उसका डिफॉल्ट वाला क्या है, डिफॉल्ट कंस्टेंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं सी डालता हूँ, अभी यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालूंगा कोटेशन नंबर में, इसको डिफॉल्ट कंस्टेंट अप्लाई किया था। यहाँ पे ए डालता हूँ और यहाँ पे 999 99 999 जो भी है। अब देखो उसने 100 ऑटोमेटिक ले लिया। इफ वी आर पुटिंग नथिंग इट विल टेक 100 ऑटोमेटिकली, बिकॉज वी हैव अप्लाइड डिफॉल्ट कंस्टेंट व्हिच इज हैविंग 100 वैल्यू, बराबर है। उसके बाद में क्लास कैरेक्टर है नॉट नल किया था, बराबर है। इसको अगर मैं नल करूंगा तो इट विल थ्रोज एन एरर, बराबर। सेल डज नॉट अलाउ नल वैल्यू, बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या था, रेट, रेट को न्यूमेरिक किया है, वो भी नॉट नल है। नॉट नल कंस्टेंट आपके समझ में आ गया, राइट। वी हैव टू एंटर, वी मस्ट एंटर वैल्यू इनटू दैट कॉलम। अब जो लास्ट वाला जो था ये क्या था, चेक कंस्टेंट। इसमें क्या था, क्लास अगर ए है, राइट, तो इट विल टेक वैल्यू लेस देन 1000, बराबर है। तो यहाँ पे मेरा क्लास ए है, इसमें मैं 1000 वैल्यू या फिर 1000 के ऊपर का वैल्यू कुछ तो डालता हूँ, तो इट इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस वैल्यू, बराबर है। तो क्या हुआ, अपडेट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्टेंट, बराबर है। वो चेक कंस्टेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड इन द डेटाबेस, डेटाबेस का नाम और टेबल का नाम, राइट। मतलब अगर क्लास अगर आपका ए है इन द कॉलम क्लास ए वैल्यू है, तो यू कैन एंटर वैल्यू लेस देन 1000 ओनली। तो ये इसलिए इट इज नॉट टेकिंग मोर देन 1000 वैल्यू। अगर मेरा क्लास बी है देन इट विल टेक वैल्यू ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 4500। ये चेक करते हैं अभी, ठीक है। ये उसने ले ली, राइट, यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। बट मतलब वो उसने 1000 के ऊपर का और 4500 के नीचे का, तो 4499 भी ले रहा है वो, राइट। उसने 4499 भी ले लिया, मगर मैं थोड़ा सा ऊपर डालता हूँ,
4551 कुछ तो डालता, मतलब 4,500 के ऊपर डाला, तो इट इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस वैल्यू, बराबर है? समझ में आया ना चेक कंस्टेंट? ओके, सो नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट वाज लाइक रेफरेंसेस, मतलब क्या, फॉरेन की है ना। तो ये लास्ट बाकी है अपना, फॉरेन की देखते हैं अपन। तो हमें पता है कि एक टेबल में का जो प्राइमरी की है, वी कैन यूज दिस एज अ फॉरेन की इनटू द अदर टेबल। तो यहाँ पे और एक टेबल लिया मैंने, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट 10, बराबर है? इसके अंदर क्या किया है, पीडीएनओ इंटीजर प्राइमरी की डिफाइन किया, राइट? और उसके बाद जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, इट इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली जनरेट द वैल्यूज इनटू द टेबल, ठीक है? तो ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट करता है। और यहाँ पे पीएनओ, मतलब ये जो पीएनओ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एज अ फॉरेन की लेना है, तो उसका सिंटैक्स है, यहाँ पे जो कॉलम नेम है सेम यहाँ पे दे दो, यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो सेम यहाँ पे दे दो। उसके बाद आपको लिखना है रेफरेंसेस, उसके बाद में प्रोडक्ट 10, राइट? मतलब जो टेबल का प्राइमरी की आप यहाँ पे फॉरेन की यूज कर रहे हो, वो टेबल का नाम, मतलब ये टेबल का नाम, एंड वो कॉलम का नाम, जो कॉलम आप यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हो। तो इस तरह से आप फॉरेन की सिंटैक्स डिफाइन कर सकते हो। ओके, एनी डाउट? नहीं ना? ठीक है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया। लेट्स फाइंड प्रोडक्ट डिटेल 10 टेबल, राइट? ये वाला टेबल है अपना, राइट? प्रोडक्ट डिटेल 10, DT10। ओके, इसको राइट क्लिक करके एडिट मोड में ओपन करता हूं मैं। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे अपने प्राइमरी की में वैल्यू 1 है, 2 है और 3 है, राइट? तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम है आइडेंटिटी कॉलम है। आइडेंटिटी मतलब क्या, इट विल जनरेट ऑटोमेटिकली नंबर्स इनटू द, हाँ, यहाँ पे अगर मैं एंटर भी करूंगा ना, इट इज नॉट टेकिंग एनीथिंग, बराबर? ये और यहाँ पे देखो आप, वो थोड़ा मतलब वहां पे मतलब वैल्यू एंटर नहीं हो रही, डिसेबल दिख रहा है, राइट? बट यहाँ पे आप वही वैल्यू एंटर कर सकते हो पी नंबर में, बिकॉज इट इज फॉरेन की, राइट? एंड रेफरेंस फ्रॉम द प्रोडक्ट 10 टेबल फ्रॉम द पीएनओ प्राइमरी की टेबल कॉलम, राइट? तो यहाँ पे आप वही नंबर एंटर कर सकते हो जो वो टेबल में है, राइट? यहाँ पे जैसे अभी 1 है तो इट एक्सेप्टेड 1, राइट? अब यहाँ पे 4 नहीं है, लेट्स ट्राई टू एंटर द 4 वैल्यू, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट 4 वैल्यू, बराबर है? तो यहाँ पे क्या आया, फॉरेन की कंस्ट्रेंट योर फॉरेन की नेम, द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड इन द डेटाबेस टेबल नेम कॉलम नेम, राइट? पीएनओ। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने वैल्यूज है प्राइमरी के टेबल में, उतने ही वैल्यू वो यहाँ पे लेगा। अदर देन दिस इट विल नॉट एक्सेप्ट वैल्यू, बराबर है? और आप इसमें नल एंटर कर सकते हो, ये जो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, बराबर है? ये बीच में एरर आता है, इसलिए वो नंबर स्किप कर देता है, ठीक है? इसलिए 1 के बाद 3 हो गया। तो दिस ऑल इज द फॉरेन की कंस्टेंट। ओके, उसके बाद जो लास्ट है वो है ऑन डिलीट कैस्केड। तो ऑन डिलीट कैस्केड बेसिकली क्या है, मतलब अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ये एक टेबल बनाया प्रोडक्ट 10, और दूसरा था कौन सा अपना, ये प्रोडक्ट डिटेल 10, राइट? फॉर एग्जांपल अभी मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आई हैव टू डिलीट डेटा फ्रॉम प्रोडक्ट 10, राइट? तो यहाँ पे मैं अभी डिलीट का अपना मतलब क्वेरी का सिंटैक्स हमने सीखा नहीं है, बट मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल प्रोडक्ट 10 वेयर पीएनओ इक्वल टू 1। एक नंबर के रिकॉर्ड में डिलीट करने की कोशिश करता हूँ फ्रॉम फर्स्ट टेबल, बराबर है? जिसका पीएनओ 1 है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट? तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, तो वो क्या एरर दे रहा है, देखो अभी, डिलीट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द रेफरेंस कंस्ट्रेंट, द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड इन द टेबल डेमो डीबी टेबल डेमो प्रोडक्ट 10, बराबर है? कॉलम पीएनओ, बराबर है? मतलब वो बेसिकली क्या बोल रहा है कि इसका जो चाइल्ड रिकॉर्ड है वो कौन से टेबल में अवेलेबल है, ये टेबल में अवेलेबल है, राइट? सो यू कैनॉट डिलीट वैल्यूज अंटिल यू डिलीट डेटा फ्रॉम दिस टेबल, राइट? तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको वो किस तरह से होता है। और एक क्वेरी लिखता हूं मैं दूसरे कॉलम के लिए। मतलब वो जो रिकॉर्ड मैं प्राइमरी की के टेबल में से डिलीट कर रहा हूँ, वो उसका जो चाइल्ड रिकॉर्ड है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो यू कैन नॉट डिलीट द वैल्यू, बराबर है? बट अगर मैं फॉरेन की में, मतलब अभी ये कौन सा फॉरेन की का टेबल है ना, प्रोडक्ट डिटेल 10, बराबर है? यहाँ से अगर वो रिकॉर्ड उड़ा दूंगा, वो मैंने उड़ा दिया, तो फिर आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, राइट? ठीक है, अभी डिलीट हो गया, राइट? प्रोडक्ट 10 से।
मतलब अगर फॉरेन की प्राइमरी की में क्या होता है, अगर चाइल्ड रिकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो यू कैन नॉट डिलीट द डेटा, राइट? ये सीन है। तो इसका एक सॉल्यूशन ऐसा है, व्हाट यू कैन डू, अगर आपको मतलब ऐसा चाहिए कि अगर फॉरेन की के टेबल में कोई डेटा है भी रेफरेंस डेटा, स्टिल इट शुड डिलीट द रिकॉर्ड, तो वो केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑन डिलीट कैस्केड यूज करना पड़ेगा फॉरेन की के टेबल में। ठीक है, मैं एक बार है ना आपको ये डिफाइन करके बताता हूँ। ड्रॉप टेबल, टेबल करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी ये जो टेबल था अपना प्रोडक्ट डिटेल 10, इसको है ना ड्रॉप करके मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया, ये फॉरेन की के बाद ये ऐड किया हुआ है ऑन डिलीट कैस्केड, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपको ऐड करना है फॉरेन की टेबल में। अगर आपको अगर चाहिए कि आपके मतलब रिकॉर्ड डिलीट होनी चाहिए इवन देयर इज अ चाइल्ड रिकॉर्ड प्रेजेंट, तो मैं इसको फिर से रिक्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने रिक्रिएट कर दिया यहाँ पे, ये ठीक है। वो जो टेबल है अपना डेमो ये वाला है, राइट? ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 रिकॉर्ड डालता हूँ, 1। प्रोडक्ट डिटेल 10, वही है ना? यानी ये तो 0 हो गया कुछ तो। यहाँ पे दिख रहा है कि ये टेबल, हाँ ये वाला है वो, राइट? इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, 1 डाल दिया। ये रुको, मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, लेट्स रिफ्रेश दिस, क्लोज दिस टू। रीनेम हो गया क्या? नहीं, रीनेम नहीं हुआ है वो। अगर 1 डालूंगा मैं यहाँ पे तो विल इट एक्सेप्ट, क्या बोल रहे हो? DTL 0 है वो। नहीं DT ठीक है, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ फिर से। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट DT 10 है ना? इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया, एडिट। वो एक्चुअली ना क्या हुआ पता है क्या, वन टैब, टू डाल के देखते हैं, रुक जा। ठीक है, वो एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया था, डेटा डिलीट किया था, इसलिए वो उस तरह से एरर दे रहा है अपने को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे टू वैल्यू मैंने इंसर्ट किया, राइट? और अगर मैं यहाँ पे ये टेबल में देखूंगा प्रोडक्ट 10, तो यहाँ पे 2 के अगेंस्ट डेटा है, राइट? एक्चुअली 1 वाला डिलीट हुआ था, इसलिए वो ले नहीं रहा था। ठीक है, 1 वाला हमने डिलीट किया ना अभी, सो वो करेक्ट एरर है, मतलब वो वहां पे नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट टेकिंग इट, बराबर है?
तो अभी 2 वाला रिकॉर्ड यहाँ पे है, प्रोडक्ट 10 में है, राइट? और द सेम रिकॉर्ड वी हैव एंटर्ड इनटू द आवर न्यू टेबल, हाँ, फॉरेन की टेबल। तो यहाँ पे अगर मैं ये दोनों टेबल पे क्वेरी फायर करूंगा तो आई कैन सी दैट दिस रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इनटू दैट, राइट? मतलब यहाँ पे 2 नंबर का रिकॉर्ड है जिसका आईडी 2 है। वो फर्स्ट केस में क्या हुआ था, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डिलीट दिस फ्रॉम दिस टेबल, तो वो डिलीट फर्स्ट नहीं वाला हो रहा टेबल। था ना, हो नहीं रहा था, बराबर, बिकॉज ऑफ इट वाज थ्रोइंग एन एरर सेइंग दैट चाइल्ड रिकॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है? बट अभी अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑन डिलीट कैस्केड अप्लाई किया है, राइट? तो अभी अगर मैं प्रोडक्ट 10 में से अगर इसको डिलीट भी करूंगा तो इट विल गेट डिलीटेड। मतलब समझ में आया? मतलब मैंने इसको डिलीट कर दिया, प्रोडक्ट 10 में से 2 को डिलीट कर दिया, इवन इट वाज रेफरेंस्ड हियर, राइट? यहाँ पे उसका रेफरेंस था, तो इट विल ऑटोमेटिकली डिलीट द डेटा फ्रॉम द दिस टेबल, राइट? नल टेबल। नल टेबल, राइट? यस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑन डिलीट कैस्केड यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ऑन डिलीट कैस्केड में इतना ही था और कुछ नहीं था। So in today's session we have learned like what is DDL command, then what are the DDL commands, like create, alter and drop. Then we have learned table guidelines, and then we have understood how to define table and its data type, right? And at the last we have seen what is constraint and what are the different types of constraint into the SQL database, and how to apply them into the SQL tables, right? तो इतना ही था, दैट्स इट, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा वो डीएमएल कमांड पे होगा, तो वी विल सी दिस इनटू द नेक्स्ट सेशंस, ओके।